Hello everyone, this is Sanchi Chavda over here. Welcomes you all. Let's discuss two questions which are related to what we have started up in the last video. So the first question is, prove that 5 minus 2 root 3 is irrational. If you have to prove it an irrational, so first of all, as I told you in the previous video, that whenever we have to prove irrational, we'll take a contradictory statement, we'll take it as a rational. So first step, let. And also you need to see this thing whether given that under root 3 is irrational. If it is not given in the equation, then you have to prove that under root 3 is a irrational number. Now, first of all, as I told you, we'll take the contradictory statement, let 5 minus 2 root 3 as a rational number, which is expressed as a upon b, where a and b are your co-primes which do not have any common factor, and denominator, as I've already told you, can never be equal to 0, so we'll say b is not equal to 0. Therefore 5 minus 2 root 3 can be written as equal to a upon b. Now in this we know this thing that under root 3 is irrational, so we'll take the other numbers to the right hand side. So we'll take this 5 to the right. What we'll get is minus 2 root 3 is equals to a upon b minus 5, which can be written as a minus 5b upon b. We can take the LCM over here. Now this minus 2 has to be taken on the right hand side, so this will become under root 3 will be equal to a minus 5b upon b into minus 2, isn't it? Because minus 2 is getting multiplied over here. The moment you will take it to the right hand side, it will go in the denominator. This minus sign I'm taking it up, minus a, sign reversal ho gaya, isn't it, upon 2b. So this is there. If you look over here, what we had a rational number, minus you did the rational number. On subtracting a rational number from the rational number, you get the answer as a rational number. Since rational numbers on subtraction results to a rational number, isn't it? Over here, if you see, you are multiplying it minus 1 upon 2. You are multiplying here by minus 1 upon 2. That means rational numbers on multiplication results to a rational number. So अगर हम rational numbers को subtract करते हैं, we get the answer as a rational number. फिर rational number को you multiply by a rational number, again the answer is going to be a rational number. So this implies what? Minus a plus 5b upon 2b is a rational number, isn't it? This is a rational. If the right hand side is going to be a rational, this will imply what? The left hand side is also rational, isn't it? हमारे पास जब राइट हैंड साइड रैशनल आ रही है तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी कैसी होगी? रैशनल ही होगी. सेम चीज़ें ही तो इक्वेट हो सकती हैं. बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स the fact that under root 3 is irrational. Under root 3 तो हमें irrational given भी है, otherwise also we know that under root 3 is an irrational number. अगर नहीं भी दिया होगा तो पहले हम प्रूव करेंगे कि under root 3 क्या है? irrational है. अब ये contradiction किस वजह से हुई है? This contradiction ऑब्वियसली हमारी रॉन्ग assumption होगी, तभी तो हमारे पास ये contradiction आई है. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption. क्या assume किया था? That 5 minus 2 root 3 is rational. हमने इसको क्या कंसिडर किया था? रैशनल है. तो इनकरेक्ट assumption थी, इसी वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन आई हमारे पास. सो वी कंक्लूड दैट 5 minus 2 root 3 is irrational. आई होप इट इज़ क्लियर. क्वेश्चन में था यू नीड टू प्रूव 5 minus 2 root 3 एक irrational है.
गिवन अगर होगा कि √3 इरेशनल है तो हमें इसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बट एग्जाम में अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं हुआ कि √3 इरेशनल है देन यू हैव टू प्रूव इट इरेशनल बिफोर डूइंग दिस। तो हमने पहले उसे कॉन्ट्रोडिक्टरी रैशनल प्रूव करना था, तो उसकी कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट ले ली कि वो रैशनल है। रैशनल होगा तो वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब a अपॉन b की फॉर्मेट में होगा। a एंड b क्या है हमारे पास, कोप्राइम्स होंगे, इंटीजर्स हैं वैसे भी, दीज आर योर इंटीजर्स एंड b इज़ नॉट इक्वल टू डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब जो भी √3 है, जैसे जो भी √ में है जो इरेशनल दिया हुआ है या जो हमें पता है कि इरेशनल होता है, ठीक है, उसके अलावा बाकी सब नंबर्स को विल शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड और विल शिफ्ट इट टू द अदर साइड, ठीक है। √ वाले को विल कीप इट ऑन वन साइड, द रेस्ट ऑन दी अदर साइड। अब 5 उधर जाएगा तो -5 हो गया, यू विल टेक दी LCM। अब रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, रैशनल, ठीक है। उसके बाद अब ये -2 है जो, उसको हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, टूवर्ड्स दी राइट अगेन। अब रैशनल नंबर को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, अगर रैशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे अगेन इट विल बी अ रैशनल। ये मेरे पास रैशनल आ गया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगी, बट ये तो फैक्ट को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है ना, कि क्योंकि ये तो √3 क्या होता है, यहाँ तो गिवन है बट अदरवाइज वी ऑल्सो नो दिस थिंग कि ना √3 इज इरेशनल। तो ये कॉन्ट्रोडिक्शन किसकी वजह से हुई, क्योंकि बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग अजम्पशन दैट दिस इज रैशनल, सो वी कैन कंक्लूड इट, क्योंकि हमारी अजम्पशन तो गलत हो गई है, इसका मतलब ये रैशनल ना हो कि इट्स अ इरेशनल। Isn't it? Hope it is clear. The next question, it says prove that the reciprocal of, again this is given to you, हमें प्रूव क्या करना है, that the reciprocal of 4 + 3√2, किसका रेसिप्रोकल, 4 + 3√2 का रेसिप्रोकल जो होगा वो क्या है, इरेशनल है। तो सबसे पहले आप इसमें भी आपके पास जो √ में है ना, लेट्स से इट इज़ गिवन टू यू, अदरवाइज यू हैव टू प्रूव गिवन दैट √2 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन में ही गिवन है आपको, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा देन यू हैव टू प्रूव इट द वे वी हैव डन इट इन द प्रीवियस वीडियो। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ 4 + 3√2। इट विल बी इक्वल टू 1/4 + 3√2, क्योंकि इसका अपॉन तो 1 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/this। अगर हमारे पास ये वाला फॉर्मेशन अगर होता है तो हम क्या कहते हैं, हम इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, अगर बीच में प्लस का साइन है तो यू टेक माइनस, ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इजंट इट। ये आ गया आपके पास 4 - 3√2, 4 का स्क्वायर a + b, a - b, a² - b²। ये हो गया 4 - 3√2 अपॉन 16 - 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18। ये हो गया आपके पास 4 - 3√2 अपॉन माइनस का 2, और अगर माइनस साइन ऊपर ले जाए तो ये हो जाएगा -4 + 3√2 अपॉन 2, ठीक है। पहले आपने इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब ये रेसिप्रोकल आ गया, अब हम इसको इरेशनल प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, लेट -4 + 3√2 अपॉन 2 बी अ रैशनल विच कैन बी रिप्रेजेंटेड in the form of a/b, where a and b basically your integers, these are co-primes, and b is not equal to 0, your denominator will not be equal to 0। तो ये क्या हो जाएगा, -4 + 3√2 अपॉन 2 किसके इक्वल आएगा, a/b। अब ये 2 पहले उधर शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि पूरे न्यूमरेटर के साथ ये 2 है, विल शिफ्ट इट टू दैट साइड, और इनफैक्ट आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा -2 + 3/2√2। आपने 2 को पहले डिवाइड ही कर दिया दोनों के साथ, ये 2 इन दोनों के साथ चला गया। अब आप -2 को उधर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा a/b + 2 = 3/2√2, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ तो हो गया 3/2√2 = a + 2b/b।
अब आपने रैशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स ऑन एडिशन रिजल्ट्स टू अ रैशनल नंबर ओनली। रैशनल नंबर्स ऑन एडिशन रिजल्ट्स टू अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब ये 3/2 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या होगा, √2, ठीक है। a + 2b/b इंटू 2/3 होगा, इजंट इट। ये 2a + 4b अपॉन कितना बन गया, 3b। रैशनल नंबर्स ऑन मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट करेंगे, रिजल्ट्स टू अ रैशनल नंबर। इसका मतलब अगर ये रैशनल नंबर है तो दिस विल इम्प्लाई √2 इज अ रैशनल नंबर। अगर हमारे पास राइट हैंड साइड रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, रैशनल होगी। सो दिस contradicts the fact that √2 is irrational। √2 तो irrational होता है। ये कॉन्ट्रोडिक्शन किसकी वजह से आई है, दिस कॉन्ट्रोडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ द इनकरेक्ट assumption। क्या इनकरेक्ट assumption थी हमारे पास, that this is rational। सो वी कंक्लूड, ये हमने अज्यूम किया था कि ये रैशनल है बट वो हमारी assumption गलत है। सो वी कंक्लूड that the reciprocal of 4 + 3√2 is irrational। I hope the 2 questions are clear to you people. That's all for today. Thank you. Thanks for watching my video. Bye. Take care.